Hello, Sunbeamers. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to part the second class of the chapter 1 of biology of class 8, that is blood, the circulatory fluid in our body. My dear students, in the previous class we have learned about the blood, okay, the parts of blood, the composition of blood, and we have also discussed about the blood cells, three types of blood cells, and I have also told you the probable questions that are possible from this section. Today we are going to read about the second part of the human circulatory system, that is your blood vessels. So with a positive note, we will start today's class. Blood vessels. Okay. I think, yeah. Fine. Blood vessels. So there are three types of blood vessels. You can see the three pictures given here. First is your muscle, it is written, it is the artery. Okay, here I am writing artery, vein, and capillary. The three kinds of blood vessels are your arteries, veins, and capillaries. What is an artery? See example. Here I am going to do. Suppose this is your heart. Okay. Consider this as your heart. Three kinds of blood vessel. First is your, which one I will show? This I will show in artery. I will show in red color. Okay, fine. So now just have a look. This is your heart, and the blood vessel that takes blood away from the heart, blood say bahar, away from the heart are your arteries. Arteries means the blood vessels that takes blood or carries blood away from the heart are known as your arteries. See, here the definition is given, which carries blood away from the heart to other body parts. Arteries. Vein carries blood towards the heart. Blood heart को लेता है, heart से artery लेता है, towards the heart कौन लेता है? Vein. कहाँ से लेता है? Body parts से. The blood is taken from the body parts to the heart. From the body, this is your body part. From the body part, the blood is taken to the heart, and that is called your vein. The blood vessel that carries blood towards the heart are your vein. And what are capillaries? Capillaries are terminal branches of artery. What is terminal branches? Connection between veins and artery also you can say. See, where there will be exchange of blood in your organ, these capillaries will be formed. Terminal branches of the artery and the starting branches of the vein. Arteries end to form capillaries, and veins formed by capillaries. Means they start from the capillaries. So here, if you see in your book, it is written clearly that arteries has thick elastic muscular walls and the blood flows with jerks. See, differentiation between veins and arteries is very important, and in case of your arteries, the walls are thick and elastic. And as these walls are thick and elastic, they have a very narrow lumen. What is lumen?
if I take a cross section of your artery, this is a cross section, okay? Round color artery. Here. Yeah. This entire portion is your thick muscular wall. And they have a very narrow lumen. Lumen means this part through which blood will flow. And this is very narrow. So as they are narrow, blood pressure increases. So blood flow with jerks. थोड़ा प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है. ओके. वेन क्या है? वेन ऑर्गन towards the heart. I have already told vein is the blood vessels which carries blood from organ towards the heart. They are thin. They are thin. See veins, अगर हम डायग्राम वेन का बनाएंगे तो vein diagram will be somehow like that. This is a vein and it will have a wider lumen and thin muscular walls. The muscular walls will be thin. Thin muscular walls, wider lumen. Lumen बड़ा है तो क्या ब्लड आराम से फ्लो करेगा. Blood will flow smoothly. Why? Because they have thin muscular walls and lumen is wide. Differentiate अगर हम देखेंगे, arteries carry blood away from the heart, veins carry blood towards the heart or into the heart. ठीक है. Second point, arteries have thick and more muscular walls. They have thick walls, vein का thin and less muscular walls. Arteries basically देखो, जो हमारा लंग्स से, लंग्स क्या करता है, यहाँ पे सपोज एल लिख देता हूं मैं. लंग्स को ब्लड जाता है तो लंग्स से अगर ब्लड आएगा तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि ऑक्सीजन होगा उसमें. आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाता है. इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, क्योंकि टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी ऑर्गन्स. मोस्टली जो होता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा कम हो या जिसमें इंप्योरिटीज ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी. व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये क्यों, इसको हम लोग समझेंगे कुछ देर के बाद. अभी बस इसको याद रखो कि arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery and veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. ठीक है, इसको आपको समझ. ब्लड फ्लोस विद जग्स. ये जग से फ्लो करता है, आपको बता दिया क्यों जग से फ्लो करता है. और इसमें स्मूथली फ्लो करता है, यूजुअली डीपली सीटेड. देखो तुम अपना हैंड्स में देखो, तुम्हें ब्लू ब्लू कलर का कुछ दिख रहा होगा, जो ब्लू ब्लू कलर का जैसे वायर जैसा दिख रहा होगा, वो सब वेन्स हैं. वेन्स आर प्रेजेंट सुपरफिशियली, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं. लेकिन आर्टरीज आर डीपली प्लेस्ड, अंदर होते हैं. ठीक है, और वेन्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर, आर्टरीज एंड वेन्स. नाउ capillaries. So capillaries are the terminal branches of the artery and which rejoin to form a vein. देखो यहाँ देखो, इस पोर्शन में देखो, दिस इज अ ऑर्गन. कैपिलरीज जो होता है वो किस में एंड होता है, सॉरी आर्टरी है, ये आर्टरी है. आर्टरी एंड होता है कैपिलरी में और फिर कैपिलरी बाद में, कैपिलरी सब रिजॉइन कर जाते हैं क्या बनाने के लिए, वेन बनाने के लिए. दे रिजॉइन टू फॉर्म अ वेन और देन वेन अगेन कैरीज द ब्लड. सो आर्टरीज क्या होते हैं, बहुत नैरो होते हैं. दे आर वेरी नैरो tube whose walls have a single layer of cells with no muscles. इसको आपको याद रखना है. वेन्स और आर्टरी में मसल्स होते हैं. दे आर, आर्टरीज में थोड़ा ज्यादा होते हैं, वेन्स में थोड़ा कम होते हैं. बट इन कैपिलरीज यू विल नॉट हैव एनी मसल. इफ यू से मी टू ड्रॉ ए कैपिलरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी, it will be just like that.
No muscular layer, only single layer of cells will be present. ऐसे ऐसे single layer of cells present होंगे. No muscular layer are found in a capillary. Okay. और एक्सचेंज जो होता है, जैसे कि आपको बोल दिया मैं, टिश्यू में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यू में है, वो फिर हार्ट को जाता है वापस, फिर वो हार्ट से लंग को जाता है. तो जो चेंज होता है, एक्सचेंज, दैट हैपेंस इन कैपिलरीज. जैसे कि आपको सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस हम अगर समझाएंगे तो देखो, यहाँ पे एक जरूरी हो जाता है समझाना. बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. यहाँ पे मैं थोड़ा हार्ट का भी चीजें लाऊंगा. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग पहले हार्ट पढ़ लेते हैं. लेट अस स्टडी हार्ट फर्स्ट, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होता है एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है. हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन. यस, इट बीट्स नॉन स्टॉप थ्रू आउट लाइफ. होल लाइफ हार्ट बीट करता है. अगर हार्ट बीट नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा. द पर्सन विल नॉट रिमेन अलाइव. So it has four chambers. Heart. This is your diagram of heart. See, it is clearly visible. Heart has four chambers. See, this diagram we have to draw. These two upper chambers. This one is the upper chamber and these two are the lower chambers. See. This one second. These two. This one and this and this. Take second. Ha. This one and this one. And it is not visible. This one and this one. These two are the upper chambers. This and this is the lower chambers. So if I draw a diagram, simple diagram of heart. See, simple diagram I am drawing because in laptop, drawing diagram is very, very difficult. See, this two is the upper two chambers. This one is the lower two chambers. Okay? These two is the lower two chambers. The upper two chambers are known as your auricles. Upper two chambers are known as your auricles. Arteries और auricles में confused नहीं होना है. And lower two chambers are known as ventricles. Okay. Upper two chambers are known as auricles and lower two chambers are known as ventricles. अब देखो, this is auricle and ventricle. Over this part is septa. This one, the part that separates two auricles and ventricles, this is known as your septa. We call it as septa. See this one. This one is your septa. This part. Can you see? This part is known as septa. Septum. Okay, this part is your septum. Now, you can see these valves. Are you able to see these valves? This one I'm erasing. Auricles, ventricles is clear. Okay, septa is also clear. You see these valves like this part, this one. This valve, these valves. These are your auriculoventricular valves. The valves present between auricle and ventricle. Now you see. This part is known as your left part. This one is your right part. उल्टा तुम्हारा जो राइट हैंड होगा उसके सेम वाला पार्ट को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे हार्ट का, और जो लेफ्ट हैंड होगा उसके सेम वाला पार्ट को हम लोग राइट बोलेंगे. सो this part is your left part, this part is your right part. So this the upper two parts are auricles
So this one will be called as left auricle, LA, left auricle. This one will be called as right auricle. Okay, दो ऑरिकल्स हो गए, अपर टू ऑरिकल्स, ये है वेंट्रिकल्स. सो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, लोअर टू पार्ट्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं. एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल, आरवी राइट वेंट्रिकल. ओके फाइन, इतना क्लियर हो गया. अब ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है. इसका भी नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में. ठीक है, आपके यहाँ है नहीं, इट इज नॉट देयर, बट फॉर जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व. दिस वन is your tricuspid valve. This is your tricuspid. This one is bicuspid. Just याद रखना है, अभी इतना important नहीं है because it is not given in your book. But still अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में आ जाता है bicuspid. ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों हुआ? फ्लैप्स की वजह से. बाइकस्पिड मींस टू टू फ्लैप्स होते हैं उसके फ्लैप्स. ट्राइकस्पिड है थ्री फ्लैप्स. ओके, सो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज blood vessels originating from your different okay sections of heart. blood vessels कौन से ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट चैम्बर्स से, कौन से ब्लड वेसल्स निकलते हैं. तो हम लोग यहाँ और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लंग्स. ठीक है, सपोज दिस इज योर लंग्स. ठीक है, दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर हार्ट. फाइन, नाउ यहां से दिस वन यू नो, दिस इज योर राइट ऑरिकल, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल. यहाँ पे दो वाल्व से बना देते हैं हम लोग, 1 2. यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, यहाँ पे 2 फ्लैप्स होते हैं. लेफ्ट ऑरिकल होता है ये LA, एंड इट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा छोटा हो गया, नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट वन, सो वी विल ड्रॉ इट अगेन. 1 सेकंड, थोड़ा इसको हम लोग बड़ा बना, बस नॉट इज ओके. लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल हो गया. नाउ पहले जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू से, सॉरी वेन्स के थ्रू से आपके लेफ्ट ऑरिकल को. सो इसका हम लोग नाम बोलते हैं पल्मोनरी वेन. ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा होगा, इफ यू रिमेंबर, पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन. हाउ? बिकॉज इट कैरीज oxygenated blood. So pulmonary vein is an exception because it carries oxygenated blood. But why it is called as vein? Because it carries blood towards the heart. You see, the flow of blood is in this direction from lungs to heart. So it is called as pulmonary vein, lungs to heart. बट कौन सा ब्लड होता है इसमें? O2 ब्लड. O2 मतलब ऑक्सीजन. तो कौन सा ब्लड होता है? O2 वाला ब्लड होता है, O2 ब्लड.
ठीक है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपका पल्मोनरी आर्ट वेन। देखो, फ्रॉम द लंग्स क्या आता है, फ्रॉम द लंग्स कम्स दी पल्मोनरी वेन, पीवी हम लोग लिख देते हैं, पी वेन, ठीक है। पी वेन मीन्स योर पल्मोनरी वेन, लंग्स से आता है हार्ट को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से दिस गोस अपवर्ड, इस तरफ जाकर आउटा आता है, वहां आउटा आर्टरी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी का, आउटा, सी AORTA, ऑर्टा नहीं बोलते हैं, आउटा बोलते हैं, आउटा। तो फ्रॉम आउटा बॉडी पार्ट्स को जाता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, LV से, LV से, ये नीचे बना रहा हूं लेकिन ये ऊपर ही होता है, ठीक है। LV से डिफरेंट पार्ट्स को जाता है, कौन सा ब्लड वेसल, आउटा, आउटा, ठीक है। आउटा क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, लार्जेस्ट आर्टरी है, वी आर द लार्जेस्ट आर्टरी। बहुत ठीक होता है ये डिफरेंट पार्ट्स को जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स है बॉडी का, बॉडी पार्ट्स को जाता है, फिर ये देखो, आउटा से, आउटा से गया ऑर्गन्स को गया, ये ऑर्गन्स, ये सपोज एक ऑर्गन है, ओके। यहां से कैपिलरीज बन जाता है, टर्मिनल ब्रांचेस हो जाता है आर्टरी का। और यही कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, ये ऑर्गन ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आया, लंग्स से आया, लंग्स से हार्ट को आया, हार्ट ने पंप किया, हार्ट पंप किया और उसको ऑर्गन को ले गया। In the lungs sent oxygenated blood through pulmonary vein to the left auricle, left auricle sent the blood to the left ventricle pumped blood through the aorta to the organs, and the organs took oxygenated blood and gave carbon dioxide through artery, through capillaries. So capillaries जो terminal branches है, वो क्या होता है, exchange of gases and nutrients हो जाता है, कैपिलरीज में ही होता है, क्योंकि वो बहुत थिन होता है तो इजीली मूवमेंट के लिए इजी होता है, हेल्पफुल होता है, ओके। नाउ अब यहां से वेन्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और वेन्स आपके ऑर्गन से लेफ्ट ऑरिकल को जाते हैं भाई, कॉल्ड एज वेना कावा, इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा, इसमें कौन सा ब्लड होता है, CO2 ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गन से गंदा ब्लड लेके कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल को जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को आता है फिर ब्लड, ऐसे, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से फिर ओरिजिनेट होता है पल्मोनरी आर्टेरी, कलर चेंज करने से अच्छा होगा, पल्मोनरी आर्टेरी, फिर ये यहाँ पे एक और यहाँ से एक लंग्स को चला जाता है वापस। अब पल्मोनरी आर्टरी नाम सुनते ही कुछ याद आ रहा होगा आपको, एक्सेप्शन जो मैं बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज नॉर्मली कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब गंदा ब्लड होता है। तो क्यों होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आपका जो ऑर्गन से गंदा ब्लड आया लंग्स को जाके प्यूरिफाई होने के लिए, वो किससे आया, वेना कावा से आया,
कहाँ आया? राइट ऑरिकल को आया। राइट ऑरिकल से उसको राइट वेंट्रिकल में लाया गया पंप करके, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? आपका लंग्स तक जाएगा। दे विल गो टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। देन योर क्वेश्चन मस्ट बी व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्टरी, वेन क्यों नहीं बुलाया? अरे भाई सिंपल फंडा है, अगर कोई भी ब्लड वेसल अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है तो उसे हम आर्टरी बोलते हैं। एनी ब्लड वेसल्स अवे फ्रॉम द हार्ट आर नोन एज आर्टरी। दिस ब्लड वेसल, pulmonary artery, going taking blood from heart to lungs, so it is your artery, away from the heart लेके जा रहा है। This is all about your blood vessels of different chambers of heart। तो और क्वेश्चन आएगा, from which part of the heart pulmonary vein arises? From left auricle। which part of the heart pulmonary artery arises? Your right ventricle। which part of the heart vena cava? Vena cava comes, when vena cava ends, your right auricle। from which part of the heart aorta starts? Your aorta starts from left ventricle। So these are your 4 important questions। Now in the next class we will learn about circulation। Okay, till then thank you, bye bye and take care, god bless you।